ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ दीपू दास के हथियारों को, दीपू दास के हथियारों को यूनुस माया, यूनुस माया, यूनुस माया, यूनुस माया, यूनुस माया, यूनुस माया। गादा दे किस गल्लों तुहानू फिर भी मैं दोबारा दोहरा देना कि जेड़ा थोड़े दिन पहलों दीपू दास नू बांग्लादेश दे विच पहलों मारिया गया, फिर ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਪੇੜ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰੇ ਤਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ 71 ਚ 94,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਜਲਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਰੋਸ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ये एक हत्या का सवाल नहीं है जी। ये तो अभी दीपू दास की हो गई, सिकंदर को गोली मार दी, एक और को खींच के ले आए, कुदरती उसको किसी तरह पुलिस ने बचा लिया, शायद इसलिए कि दुनिया में उनकी निंदा बड़ी होने लगी थी। वहाँ कल रात को भी उन्होंने हिंदू के घर को आग लगाई, उनके पशु भी जल गए। आग हिंदू के घर को लगाई, उनके पशु जल गए। कुदरती उनके घर के पिछला दरवाज़ा भी था तो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो ये जो है ना हिंदू विरोधी लहर, हिंदू विरोधी मतलब भारत विरोधी लहर, ये बांग्लादेश में चल रही है। और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया, वो हमने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया है। हिंदुस्तान के हज़ारों जवानों की वहाँ कुर्बानी हुई बांग्लादेश की जंग में, और उनको शर्म आनी चाहिए कि 93 और 97 97,000 जवानों जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको रेंग के हमने सरेंडर करवाया। न्याजी की बेल्ट उतरवाई, न्याजी से ऑर्डर लिखवाया कि मैं झुकता हूँ, मैं समझौता करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और इतने साल वहाँ शेख हसीना, कभी खालिदा और लोग सब आराम से रहे। भारत के बहुत से लोग वहाँ व्यापार करते हैं। अब वहाँ बात तो ये है, पाकिस्तान परस्त हो गया बांग्लादेश। है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही चीज़। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि हमारे से बांग्लादेश दिया था, तोड़ा था, तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। यानी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा परोपकार किया बांग्लादेश पे, और फिर भी हिंदू की एक निर्मम हत्या, और ये इतना बुरा संदेश जो जा रहा है। भाई एक हत्या नहीं कही है इसे जी, हत्याएं कितनी हो रही हैं। जब मकान जल गए, उनके पशु जल गए, कोई बाहर निकल गया। जो पीछे जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ है 37 से ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं।
अब तो एक आपने देखा ना वहाँ जी। क्या हो रहा है, सब किसी को पता। ये मेमन सिंह वाला में हुआ है, तो बड़े शहरों का तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये सीधी बात है, अगर तो दुनिया में एक आक्रोश उठेगा उनके विरुद्ध जिन्होंने ये सारा अत्याचार किया है। गवर्नमेंट आती है, जाती है, बदलती है, इलेक्शन होते हैं और बात है, लेकिन उसके लिए केवल हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये हत्या से एक गूंज उठनी चाहिए? हिंदुओं की जो एकता में जो एकता का अभाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को इकट्ठे होकर नहीं, के, बांग्लादेश एकजुट होकर में एक मंच पे आना चाहिए। बांग्लादेश में एकता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले हत्याकांड और सारे गुंडागर्दी के बाद हमारी महिलाएं बांग्लादेशी आगे निकल के आई थी। उन्होंने कहा था आओ आगे कौन आता है। थोड़े दिन शांति रही। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता है यूनुस गद्दी पर बैठ जाए। यूनुस के गद्दी पर बैठने का मतलब है हिंदुओं के विरुद्ध पाकिस्तान के इशारे पर अत्याचार करना। वहाँ हिंदुओं का विरोध हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है, पूरी दुनिया जहाँ बैठे हैं और हिंदुस्तान, हमारा जो आवाज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर हो रहे जुल्मों की इतने ज़ोर से उठनी चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार आज है या कल बनेगी, उनको सोच लेना चाहिए कि ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये आगजनी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। दुर्गाना कमेटी की तरफ से या कोई हिंदू संघर्ष कमेटियों की तरफ से सरकार को कोई पत्र द्वारा याचना दी जा रही है? याचना हमने क्यों देनी है और किसको याचना देनी है? हम तो भारत सरकार को ही लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा कदम लो जिससे हमारे वहाँ बसे हिंदू भाई और पूरी दुनिया में बसे हिंदू भाई। आपको पता है बर्मिंघम में खालिस्तानियों ने मंदिर तोड़ दिया कि रितंबरा जी को नहीं आने देना। कैलिफोर्निया अमेरिका में तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ दिए। तो जब अपने ही लोग वहाँ कर रहे हैं, तो कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को आगे बढ़ाया। उसका रिजल्ट हुआ है कि वहाँ का जो सिख समाज है, जो वहाँ पहले बसा है, उसने उनको नकार दिया। आज वहाँ खालिस्तानियों का कोई भी प्रत्याशी जीता नहीं है। तो इस तरह की एक जागृति की ज़रूरत है कि शांति से जीना है। तो आतंकवादी, चाहे वो किसी वेश में है, सिख वेश में है, मुसलमान है, नक्सली है, कोई भी है, जो ऐसा है उनका विरोध एक स्वर से होना चाहिए। तभी बेटी सुरक्षित है, तभी रोटी सुरक्षित है। लगता नहीं आज हिंदुओं को एक होना चाहिए? हमने कल मैसेज भी डाला था, फिर भी हिंदू आज जथेबंदियां पूरी आ नहीं देखो पंजाब में नहीं हुआ। अफसोस से कह, मुझे जब मैं पिछले 2 दिन कुछ खास काम नहीं कर पाई, तो जब मैंने देखा दिल्ली से लेके बंगाल तक रोष, ना हरियाणा में ना पंजाब में, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब को कोई दर्द नहीं। और अब मुझे एक बात का अफसोस है कि पूरी सूचना हमारे, कल शाम को ये तय हुआ, ज़्यादा सूचना नहीं गई, लेकिन मंदिर की आरती में 2 समय अनाउंसमेंट के बाद मुखिया जी के द्वारा वो लोग नहीं आए जो घर में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। ये घरों में बैठ के लेना चाहते हैं। मंदिर के अंदर कथा हो रही है, वो मोक्ष की कथा हो रही है। स्वर्ग में कैसे जाना है? स्वर्ग में तो भगवान ने अपने आप ही ले जाना है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ले जाएगा। हमें धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है? मैं आतंकवाद के दिनों में भी यही कहती थी, भाई स्वर्ग जाने की चिंता ना करो, इस धरती को स्वर्ग बनाने की चिंता करो। वो नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो एक ही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। जो योगी ने अब कहा ना बंटोगे ना कटोगे। अगर बंटोगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ो, कन्हैया का सिर काट दिया। कन्हैया का समर्थन करने पर नूपर को मारने की धमकी आने लगी। सीधी बात है, पंजाबी में कहते हैं दुनिया मनदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। अगर हम शक्तिशाली होकर रहेंगे तो सारी दुनिया हमारी है। ठीक है।